सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. और धन्यवाद करते हैं आज सुबह के लिए। और आज बहुत उत्साहित करने वाला वचन नहीं है, ज्यादा जांचने वाला वचन है। We thank the Lord for this morning. Today it's not so much a message of encouragement, so much as it is a message of examination. हाँ, हम पढ़ेंगे प्रेरित। तो आपसे निवेदन है जो लोग कैमरा खोल सकते हैं खोल लें, मुझे अच्छा लगेगा। And those of you who can open your cameras, kindly do so. I would really appreciate it. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस बात के लिए, जिन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए खोला कैमरा। Those who open their cameras to encourage me. हाँ, हम प्रेरितों काम 4, 36, 37 और 5 अध्याय 1 से 11 तक पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल हो तो खोल लें और ध्यान से उंगली रख के पढ़े, क्योंकि सारा मनन हमारा इन्हीं पदों पर है। Acts 4, 36 and 37, chapter 5, verse 1 to 11. We'll meditate on these verses, so please read them carefully as we go along. यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। हनन्याह नाम एक मनुष्य था और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वे तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तो तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बात सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया। सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई, गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने ये भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वारी पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वे तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास हाँ जी भाई कनेक्शन कट गया था। तब उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिया, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। Joseph the Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. With his wife's full knowledge, she kept back a part of money for herself, but bought the rest and put it at the apostles' feet. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some money you have received from the land? Didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think doing such a thing? You have not lied to human beings, but to God. When Ananias heard this, he fell down and died. A great fear seized all who heard what happened. Then some young men came forward, wrapped his body, and carried him out and buried him. About 3 hours later, his wife came in, not knowing what happened. Peter asked her, tell me, is this the price you and Ananias got the land? Yes, she said, that is the price. Peter said to her, how could you conspire to test the Spirit of the Lord? Listen, the feet of the men who buried your husband are at the door, and they will also carry you out. At that moment, she fell down at his feet and died. Then the young man came in and finding her dead, carried her out and buried her beside her husband. Great fear seized the whole church and all who heard these events. प्रभु जी इस वचन पे आशीष दे। Lord bless his word. और प्रभु जब तक तू स्वर्ग से नहीं देगा कुछ भी प्रकट होने वाला नहीं। And until you give from heaven, nothing will be revealed.
आदमी की ज्ञान तैयारी कुछ नहीं कर सकती Man's knowledge, preparation can do nothing जब तक पवित्र आत्मा ना करे। until the Holy Spirit does it. इसलिए हम दोनों भाइयों को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में लें, अपने लहू से पवित्र करें, बोलते ही आप दें, पुकारने का शब्द दें। That is why sanctify both of us in your precious blood, take us in the control of the Holy Spirit and give boldness to speak. सारी महिमा आपको मिले। You may receive all the glory. लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन का काम, and real transformation may happen in your people's lives. आप प्रभु जी यिर्मयाह 1:9-48 से निर्गमन 4:12 पूरा करें। Fulfill Exodus 4:12, Isaiah 48:6, and Jeremiah 1:9. प्रभु जी हम आपकी महिमा देखना चाहते हैं, You want to see your glory, Lord, दर्शन देखना and vision जिसमें जीवन है और बहुतायत का जीवन। in which there is life and abundant life. बोल यहोवा तेरा दास सुनता है। Speak, Lord, for your servant hears. और दिल दे कि उसे बात सुने हुए को मान सके। And give the heart to accept the word of God. हमारी लाज रखें Lord, have mercy. प्रभु, कहीं कोई छुपी बात हो तो प्रभु If there's any hidden thing, Lord, please wash it away in your blood. प्रभु यीशु के नाम से We ask this in Jesus' name. Amen. आमीन। बाइबल की जो देह है, The body of the Bible, उसमें 66 हड्डियां हैं। there are 66 bones in it. उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का लहू हर शब्द में दौड़ता है। And the blood of the Lord Jesus Christ runs in every word of the Bible. उसकी देह में पवित्र आत्मा का जीवन, परमेश्वर का जीवन का। And in the body, the life of the Holy Spirit works in it. इसलिए उसने कहा तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन। That is why he said that you may have life, an abundant life. पवित्र आत्मा का एक पक्का अनुशासन है कि वो वचन के ट्रैक से कभी बाहर आकर जरा भी काम। This is a perfect work of the Holy Spirit that he will never do anything outside the word of God. वो ट्रैक है ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट का, और उसी के अनुसार अगर हम मांगते हैं तो पाते हैं, उससे बाहर मांगते नहीं मिलेगा, उससे बाहर आराधना करते हैं स्वीकार नहीं की जाएगी, है उससे बाहर कुछ नहीं है। वही बेस है, पवित्र आत्मा उस पर ही काम करता है। When we ask according to the track is the Old and the New Testament, we ask according to that and worship according to that, it will be received, heard and accepted, otherwise not. उसके अगर आप बाहर आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कोई स्वीकार ही नहीं। If you pray and worship outside the word of God, it is not acceptable. और वचन के बाहर रहकर दान भी देंगे, वो भी स्वीकार ही नहीं। Even if you give an offering outside the word of God, not acceptable. प्रियो, मैं और आप वचन के बाहर जीवन जिएंगे, मैं और आप वचन के बाहर जहां जीवन जिएंगे, पवित्र आत्मा हम पे काम नहीं करेगा। Dear ones, if you and I live outside the word of God, the Holy Spirit will not work in our lives. हमारा ज्ञान काम कर सकता है, हमारा एक्सपीरियंस काम कर सकता है, पवित्र आत्मा नहीं करेगा। Our knowledge and experience can work, but not the Holy Spirit. वो वचन से बाहर नहीं करता। It cannot work outside the Holy Spirit. जो मंडली वचन के बाहर चलती है, जीती है, वो जीवित तो कहलाती है, मगर मरी हुई है, उस मसीह का जीवन नहीं है। That assembly that lives outside the word of God is though called living, yet it is dead. जो वचन के अनुसार नहीं जीता, वो कहता है, कहलाता है, दोनों बातें, कहता है और कहलाता है कि मैं जीवित हूँ मगर है मरा हुआ। He who doesn't live according to the word of God says and thinks that he is alive, but he is actually dead. हमारा वो महायाजक है, Our Lord, our whole high priest is such, जो मर गया। who died. हमारा महायाजक मर गया Our high priest died और तीसरे दिन जी उठा and rose again on the third day. जीवित महायाजक ने हमें एक जीवित व्यवस्था दी है। And the living high priest has given us a living law. वो अनुग्रह पर आधारित है, which is based on grace. पुरानी व्यवस्था थी, वो कर्मों पर आधारित थी, अनुग्रह पे नहीं। The old covenant was built on works, not on grace. अब आगे चलते हैं, हम एक पद पढ़ेंगे। इस विषय पे जाने से पहले कुछ बातें क्लियर कर लें। Now, before going forward, we'll read a verse, and before we move forward, shall we clear up a couple of things? यूहन्ना 13:8 में लिखा है। It says in John 13:8. उसमें प्रभु पैर धो रहा है लॉर्ड्स टेबल से पहले। There the Lord is washing his disciples' feet before the Lord's table. कहते नहीं प्रभु मेरे पैर मत।
And Peter says, Lord, no, do not wash my feet. तो प्रभु का कहने का था, अगर मैं आज तुझे नहीं धोऊंगा तो तेरा मुझसे कोई साझा नहीं है। हाँ। And the Lord said, if today I don't wash your feet, you have no fellowship with me. अगर अगर आपके मोबाइल पर आपने कर रखी है, बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर रखे होंगे, अगर आप बाइबल हब करके एक ऐप है, अगर डाउनलोड कर लें तो सारे आपको जितने वर्जन है वो सब मिल जाएंगे। बड़ी आपको मजा आने लगेगा बाइबल पढ़ने में। If you download the Bible Hub app from Play Store, you will get various translations of the Bible, and you बाइबल हब करके, बाइबल हब करके, it's called Bible Hub, and you will get real joy in reading those various translations. हाँ, तो इंटरनेशनल वर्जन में लिखा है कि तू मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता। And the New International Version, it is written that you cannot be involved with me. हाँ, तेरी मेरी कोई सहभागिता नहीं, संगति नहीं है उस समय। You and I don't have any fellowship. संगति का मतलब ये नहीं है Fellowship doesn't mean कि रिश्ता नहीं है। that you don't have any relationship. जब छोटा बेटा पाप में चला गया तो रिश्ते में तो था वो। When the younger son went into sin, he continued to be in relationship with his मगर वो father, बाप की संगति में नहीं है। but he was no longer in his father's fellowship. हाँ, तो आइए अब हम इससे पहले जहाँ से हमने शुरू किया था, प्रेरितों का काम 4:36 से, वहाँ कुप्रस का एक यूसुफ है जो लेवी था और विश्वास में आ गया था और वह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था। Now we see a Levite from Cyprus who had come to the Lord. He was a very, very influential, powerful believer. हाँ, वो जब लाया गया तो वो दूसरों को लाने में लग गया। When he was brought to Christ, he got into the business of bringing others to Christ. वो हर निराश को आशा देता था, बड़ा एनकरेजमेंट देता था लोगों। He used to really encourage other people. हिंदी में लिखा है वो शांति का पुत्र है, NIV कहता है son of encouragement। And the NIV translation says he's the son of encouragement. वो हिम्मत देने का पुत्र है। हिम्मत देने वाला, लोगों को, कमजोरों को, गिरों को हिम्मत देने वाला। He encourages those who are weak and fallen. बहुत प्यारा, मतलब बड़ा प्रभावशाली था, बहुत प्यारा था, दिलों में और दिमागों में लोगों की एक विशेष जगह बना ली थी उसने। He was very influential and effective, and he created a place in the hearts of people. क्योंकि वो वचन के अनुसार चलता था और पवित्र आत्मा से भरपूर था। Because he lived according to the word of God and was full of the Holy Spirit. वचन के अनुसार चलता, वहाँ पवित्र आत्मा पूरा काम करता है। When you live according to the Holy Spirit does a complete work in your life. और बड़ी सुंदर बात लिखी है उसके लिए प्रेरितों 11:21 से 26 तक, अगर पढ़ सके हिंदी में पढ़ दें। And in Acts of the Apostles 11 21 से 26, 21 to 26, Acts 11 21 to 26. 21 to 26 जी भाई। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा और वहां पहुंचकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वे एक भला मनुष्य था, पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वे शाऊल को ढूंढने के लिए तरसूस को चला गया। जब वे उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। हाँ, हम जो मसीह कहलाते हैं, इसके पीछे जो परिश्रम था वो बरनबास का था। That we are called Christians today. The labor behind this was this man Barnabas. वो ऐसी मंडली में जीता था जो मसीह ही के स्वरूप में दिखाई देती। He lived in such an assembly that looked like the Lord Jesus Christ. मसीह की देह में मसीह दिखाई देता था। Christ was seen in the body of Christ. आज में मसीह की देह कहलाती है मगर इसमें मसीह नहीं दिखाई देता। Today it is called the body of Christ, but Christ तो is कहीं not बाहर seen. दरवाजे पे खड़ा हुआ है। He is seen somewhere outside on the gate. ये मैं बिब्लिकल बात कह रहा हूँ आपसे। I am telling this to you biblically. हाँ, 7 में से 5 मंडली तो ऐसी थी जिनसे प्रभु दुखी था। Out of the 7 churches in Revelation, 5 were such that the Lord was not happy. हाँ, एम्प्लीफाइड बाइबल में एक शब्द लिखा है इसके लिए, बहुत ही मार्वलस वो है, अनुवाद है।
There is a wonderful translation given in the Amplified Version. It is a very wonderful translation. उसमें लिखा बरनबास was a good man, एक अच्छा आदमी था. It is written that Barnabas was a good man. उसके आगे जो लिखा है वो गजब है. And that which is written beyond it is even better. हाँ, बरनबास एक अच्छा आदमी था. उसके आगे लिखा है privately and publicly. And it is written he was a good man privately and publicly. यानी देखिए क्या बात लिखी है. मतलब अकेले में भी और सब लोगों के सामने भी वो अच्छा आदमी था. हाँ, अकेले में हम भाई क्या होते हैं तो हमें मालूम है. That या which प्रभु we को. are when we are privately is a very different thing. तो Only फिर the Lord बाइबल knows. क्या कहती है? What does the Bible say? वो अकेले में अच्छा आदमी था और पब्लिक के सामने भी अच्छा. He was a good man both publicly and privately. मेरे ये अनुवाद पढ़ के मजा आ गया मुझे. I was really amazed to read this ये translation. जीवन होना चाहिए. ये जीवन अगर अच्छा जीवन तो ये वाला अच्छा जीवन होना चाहिए. This, if it's a good life, this should be the good life. तो फिर आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज है ये काम नहीं करेगा. फिर पवित्र आत्मा काम करेगा. Then your experience, knowledge, education will not work, but the Holy Spirit Himself will work. हाँ, हम अकेले में कुछ, बाहर में कुछ, मन में कुछ और दिखावे में कुछ, ये तो We हमारा. are somebody else when we are alone, somebody else when we are in public, somebody else outside, somebody else inside. पवित्र आत्मा वचन से बाहर जीवन जीने वालों के अंदर काम नहीं करता. The Holy Spirit doesn't work in the lives of those who work outside the Word of God. आप कैसे जीते हो अकेले में दिखाने के लिए? How कैसे do you जीते? live when you're alone, or just do you live publicly for outward show? हाँ, देखिए ये एनकरेज करता हूँ दूसरों को, एनकरेज And he हिम्मत encouraged हिम्मत others. देता हूँ, He encouraged others, निराश नहीं करता था. did not discourage them. ये पौलुस बिल्कुल निराश होकर चला गया 5 साल के लिए, ये उसको लौटा के लाया. मरकुस निराशा में चला गया, ये लौटा के लाया. कई मंडलियों को उसने उभार कर खड़ा किया. और पौलुस को बनाने में, मरकुस जैसे आदमी को बनाने में जो गॉस्पेल का टॉप आदमी था उस समय, पौल खुद कहता है कि सुसमाचार के लिए बहुत उपयोगी है मरकुस, सुसमाचार के लिए गॉस्पेल. तो ये सब और अंताकिया की मंडली, ये इसके द्वारा पवित्र आत्मा की देन है. Paul had gone away many years, discouraged. Barnabas brought him back. Mark discouraged. Barnabas brought him back. He raised up the assembly of Antioch and was encouraging many people. हम Even तो to the extent निराश करने वालों की लाइन लगी रही. there's a whole range of people to discourage us. हाँ, पहले घर से ही शुरू होती है. We start from home. मतलब आप किस तरह डिप्रेस कीजिए. How you can be depressed. फिर मंडली में तो लाइन लगी पड़ी है. The whole line of people in the assembly. तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते. You don't do this, you don't do that. जो बहुत कुछ करते हैं उन्हें करने के लिए हमेशा कहते हैं तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो. They who do to a lot, to them they say you do this, you do that. ये वो हैं जो कुछ नहीं करते. These are they who don't do anything. ये सिर्फ लोगों को निराश करते हैं. They only discourage others. आप बड़े बने बैठे हो, अधिकारी बन गए हो, ये करते You हो. are becoming a leader, you're sitting on top of others. ऐसे चलना चाहिए, ऐसा चलाना चाहिए. You should live like this, walk like this. तो फिर चला ले भाई, तू क्यों चलाता, क्यों नहीं किए? Then you do it. Why don't you do it? बहुतों ने चलाई थी 2 साल, अब तक कहाँ है हमें नहीं मालूम. तू भी चला के देख ले, फिर चला ले. Many people tried doing it. You also tried to do it. पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते. Because you do not walk by the Holy Spirit. चलते हैं और कुछ दिखाना चाहते हैं कि मैं कुछ हूँ. They walk, but they want to show others that I am something. अब बरनबास बहुत प्रभावशाली हो गया था, व्यक्तित्व बड़ा सम्मानित था, उसका जो व्यक्तिगत जीवन था वो सम्मानित था. Barnabas had become very effective in his personal life also was very effective. तो इससे भी लोग उसकी नकल करने के लिए, उसके वो करने के लिए बहुत उत्साहित हो गए. Many people were challenged and enthusiastic to copy him. मैंने देखा ना, नकल बड़ी होती है आजकल. वो बाल इधर से काट के, यूं काट के, बीच में गुच्छा सा रख के, भाई जी सब ने नकल करनी शुरू हो गई. सभी. For example, people imitate the hairstyle of the lead stars of today. भाई ये ऐसी कमीज पहनेंगे, शाहरुख खान जैसे हो जाएंगे, और ये सब आदमी बस ऐसी चप्पल होनी चाहिए, ये वाला सूट होना चाहिए, ये कलर ज्यादा, ये सब नकल करते हैं. Wear a shirt like this and become like Shah Rukh Khan, slippers like this or jackets like this.
तो ये स्वभाव रहता है। It's all imitation. This nature remains in us. हाँ, तो इनमें मेरे भी अंदर भी आज जब मैं जवान था, This was in me also when I was young. एक रॉबर्ट भाई था, रॉबर्ट करके, There was one brother, Robert. बड़ा स्मार्ट भाई था, बड़ा बहुत सुंदर, उसके हाथ के एक्शन, उसका वो इतना बढ़िया लगता था मुझे। Very smart, and when he used to give the gospel, the actions of his hands used to be so attractive. तो मैं उसकी नकल करने लगा। I started imitating him. अब क्या हुआ Then what happened? कि मैं वैसे एक्शन पे ध्यान रखता, ये वो है, मतलब वो I सब। used to pay attention to the action like this and like तो that. वचन से ज्यादा मेरा ध्यान उसके एक्शन पे रहता था। So that my attention was more in his action than the word of God. तो दो नुकसान हुए, एक तो मैं उस जैसा बन नहीं सकता था, Two things, two damage happened. One, I could not become like him. और मैं जो मैं था वो वचन हट के कहीं हो जाता था। And that which should have been through me, the word was completely lost. हाँ, बहुत सारे लोग पता है बाइबल कैसे पकड़ते हैं, यूं करके। You know how many people hold the Bible? They fold it in their hands and hold it. हाँ, क्यों पकड़ते हैं पता है? And why? भाई भगत सिंह पकड़ते हैं। The Bhakt Singh used to do that. आप भाई भगत सिंह नहीं बचते, भाई भगत सिंह आप नहीं बन सकते, जो The प्रभु ने you बनाया वो cannot है। become Brother Bhakt Singh. Brother Bhakt Singh cannot become you. What the Lord has made you, that you can be. हाँ, तो नकल करने की आदत होती है कि भाई हम तो ये ऐसा है, So a desire to imitate others, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें। to use words like that. तो भाई प्रभु ने आपको अलग बनाया, आपकी सेवा अलग है, आप दूसरे, आप कभी भी भाई भगत सिंह नहीं बन सकते, मैं बन नहीं सकता। और प्रभु ने मैं ये खो दूंगा अगर बनने की कुछ, तो मैं वैसली जो बनाया उसको खो दूंगा। You cannot become like anyone else, otherwise you will lose the very thing the Lord wants to make you. हाँ, दो पति पत्नी थे, उनका नाम था, एक का नाम हननिया और दूसरे का सफीरा, दोनों पति पत्नी। Husband and wife, Ananias and Sapphira. यार मंडली में हमारा भी ऐसे नाम होना चाहिए। Such should be our name and fame in the assembly. हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, Now hear carefully. बाइबल में ये कहानी और ऊपर नीचे लिखी है, बिल्कुल पद तो बाद में आया, मगर ये साथ जोड़कर लिखी गई। In the Bible, this story has been written consecutively. देखिए, बरनबास को वचन की संगति से करने से उसका विवेक बहुत संवेदनशील हो गया, तो बहुत शार्प, बहुत संवेदनशील हो गया। Barnabas, because of his service to the Lord, his conscience had become very conscious, alert. क्योंकि इब्रानियों 10:16 में लिखा है कि जब हम बार बार वचन सुनते हैं तो हमारे विवेक पर परमेश्वर अपना वचन लिख देता है। Because it says in Hebrews 10:16, when we continually hear the word of God, the Lord writes his word on our conscience. आप नोट कर लो, पढ़ लेना, इब्रानियों 10:16 में लिखा है। You can read it in Hebrews 10:16. हाँ, वो अपना हमारे वचन जो बार बार सुन रहे हो, ये वचन कहीं हमारे विवेक पर लिखता है बार बार। The Lord writes the word of God on our conscience. और विवेक वचन के अनुसार बहुत संवेदनशील हो जाता है। And the conscience becomes very conscious, very delicate because of the word of God. फिर हम उस विवेक के अनुसार जीने लगते, चलने लगते। And then we start living by that conscience. हाँ, जो वचन हमारे विवेक पर लिखा होता है, That word that is written on our conscience. फिर छोटी छोटी बातों पर भी हम विचार करने लगे, नहीं ये वचन के अनुसार नहीं, ये नहीं करता, मतलब इतना ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। And the conscience becomes so sensitive that we are mindful of even small things in our life. हाँ, और जब वचन पे विवेक होने लगता है तो पवित्र आत्मा और विश्वास की सामर्थ्य से भर जाते हैं। When the conscience becomes so sensitive, we are filled by the power of the Holy Spirit in our life. अब इसका विवेक कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि तो अपना घर बेच के और भैया प्रेरितों के पैरों में डाल देना, कहीं नहीं लिखा, ना पुराने नियम में, ना नए नियम में, ना मंडली ने कहीं कोई ऐसा ऑर्डर पास किया। Nowhere is it written that you sell your house and lay it at the apostles' feet, neither in the Old or the New Testament. मेरे ख्याल में इसी व्यवस्था में पढ़ रहा था कि ये लेवी था और लेवी लोगों को इस्राएल में भूमि खरीदने का कोई हक नहीं था।
And probably he was reading in the law, and according to the law, the Levites had no right to have property in the tribes of Israel. तो इसके विवेक ने कहा नहीं, मैं जमीन नहीं रखनी चाहिए. And his conscience told him, I should not have land with me. हाँ, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है लेवी नहीं खरीदेंगे, उनका भाग मैं हूँ. Because it is written in the law that the Levites will not have an inheritance in Israel. I am their inheritance. तो इसने उस विवेक को ठीक करने के लिए जमीन बेची और प्रेरितों को पैर पे रखकर सारा पैसा रख दिया. So to set the conscience right, he sold off the land and laid it at the apostles' feet. अब तो ये और ज्यादा हो गया यार, क्या आदमी है. Now he became even more influential and popular because what a man. और अब मन में आया, इनके भी था यार, कहीं हो यार, हमें भी आदर और सम्मान हमें मिलना चाहिए. And they also got, other people also thought, we should also have this honor and respect that he's getting. हाँ, वो हमें भी इसके समान बनना चाहिए. We must also become like him. हाँ, तो अब हम प्रेरितों का 5:1 में देखते हैं. हननिया और सफीरा दोनों पति पत्नी थे, विश्वासी थे. And Hananias and Sapphira were believers. हननिया का मतलब है, अर्थ है, मतलब है प्रभु अनुग्रहकारी है. The word Ananias means the Lord is gracious. हाँ, सफीरा का मतलब है सुंदर. And Sapphira means beautiful. हाँ, ये परमेश्वर का अनुग्रह पाकर उसके अनुग्रह का अपमान करता है. He gets the grace of God and then dishonors the grace of उसके God. अनुग्रह का स्वाद चख के फिर अनुग्रह का अपमान करता है. Having tasted the grace of God, he dishonors it. सफीरा ऊपर से बड़ी सुंदर थी मगर अंदर से सुंदर थी. Sapphira was very beautiful from outside, but from within. हाँ, कहानी इनकी दोनों की इस तरह है कि ये प्राइवेट लाइफ कुछ बिताते थे और पब्लिक लाइफ कुछ बिताते थे. Such is their story. They live different life privately, different life publicly. हाँ, जो घर की अपना व्यक्ति अंदर का जीवन में फर्क था इन दोनों का, और बाहर का जीवन फर्क. The life within is different, the life outside is different. हाँ, बरनबास इस सोच के साथ जीता था, Barnabas lived with this. मंडली के लिए मैं क्या करूं. What can I do for the assembly? उसकी सोच थी, मैं मंडली के लिए, प्रभु की मंडली के लिए क्या करूं. His thinking was, what can I do for the assembly? हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ. What can I do for the assembly? हाँ, उसके जीवन में एक बात, ये बड़ी बात है. This was a big thing in his heart. हाँ, कि मैं मंडली के लिए क्या कर सकता. What can I do for the assembly? मगर कुछ लोगों का ये विचार रहता है कि मंडली मेरे लिए क्या करे. But some people have this thinking, what can the assembly do for me? हाँ, उनकी यही रहती है कि मंडली मेरे लिए क्या करे. What can the assembly do for me? हाँ, और प्रियो, एक बार आप मेरे लिए पद पढ़ दीजिएगा, प्रेरितों का 5 और 1 पढ़. Acts of the Apostles 5 और 1, 5 and 1. और हनन्या नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची. Now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. हाँ, हेलो. Yes, brother. तो इन्होंने बेची इसलिए कि भाई हमें भी नाम मिलेगा, पब्लिसिटी मिलेगी, कुछ हमारा भी मंदिर में आदर होगा. They also sold the land in order to get some publicity and honor and fame in the assembly. हाँ, और हननिया सफीरा प्रशंसा पैसे को प्यार करते थे. Ananias and Sapphira loved both fame and money. हाँ, और दिखता था कि मंडली को प्यार करते थे, It seemed that they loved the assembly, मगर वो पैसे और प्रसिद्धि को, प्रशंसा को प्यार करते. but they loved name and fame. हाँ, दोनों ने यह विचार किया कि जमीन बेच दो, Both of them made a decision to sell the land और घोषणा कर दी कि हम जमीन बेच रहे हैं और ये प्रभु को देंगे. and made an announcement, we are selling this land to give to the Lord. अब जब जमीन बची और इतना बड़ा धन आया, गड्डी की गड्डी नोट आई, तो देखकर भाई जी तबीयत. When they sold the land and that he got a huge amount of money, their heart was really taken up with that. नियत बदल गई. And his heart desire changed. इतना पैसा यार नहीं यार. So much money.
अरे 10वां हिस्सा इतना बैठेगा नहीं यार। Oh, 10% is so much. No, 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 no. हाँ, तो पूरा देने के लिए घोषणा कर दी थी। They gave the announcement that they'd give the whole amount. तो अब पैसा देखकर उनकी नियत पलट गई। अब क्या उन्होंने अपना, Now, seeing the money, their heart changed. तो अब तरकीब पलटी। So they changed the tack. हाँ, इनका भाई बताएंगे इतने बिका और हमने पूरा का पूरा रख दिया। We'll say, मोटा oh माल, well, मोटा माल अपने पास रख लेंगे। we will say the land was only sold for this much amount and we've given it all and we'll keep the big chunk कितने with ourselves. विश्वासी हैं जब बीमारी, मुसीबत, बच्चों की परेशानी इधर उधर से आती है, प्रभु मैं ये करूंगा, अब से ऐसा चलूंगा, और अब ये नहीं करूंगा, अब ये दूंगा और वो, कितने वायदे मारते हैं। So many believers, when sicknesses and problems come upon them, they make big decisions. Lord, I do like this and I do like that and live like this and live like प्रभु that. अनुग्रह कर, याकूब की तरह, ये प्रभु बस बात मुझे ठीक ठाक रखूंगा, 10वां हिस्सा दे। Oh Lord, only keep me well, I'll give you 10%. और भाई जी, प्रभु का अनुग्रह जब मुश्किल से बाहर निकाल कर खड़ा कर देता है, And when the Lord's grace delivers them out of this problem, फिर उसी आदत में वहीं आकर खड़े हो जाते। they are back in the same situation again. ये परमेश्वर के अनुग्रह का अपमान करना है। प्रभु ने पैसा मांगा नहीं था आपसे। And this is dishonoring the grace of God. The Lord had not asked for the money. प्रभु जानता था ऐसों से सेवा भी नहीं मांगता। And the Lord doesn't even ask for service from such people. ये लोग बार बार पछताव करते हैं, फिर जाकर वहीं खड़े हो जाते हैं, इनकी आदत बन जाती है। These people repent again and again, go back to the same place again and again, becomes their habit. और फिर धीरे धीरे इनका विवेक सुन्न पड़ जाता है, मन विवेक की सुनना बंद कर देता है। And bit by bit, their conscience becomes dull. The heart stops listening to the voice of the conscience. फिर आस्ते आस्ते इन्हें अपने पाप का एहसास खत्म हो जाता है और ये पाप के साथ जीना शुरू करते हैं। And bit by bit, they stop realizing the magnitude of their sin. They stop living with that. मैं कह रहा हूँ ये विश्वासी हैं, These are believers. ये विश्वासी हैं, These are believers. शारीरिक विश्वासी हैं। Carnal believers. ये मियाँ बीवी दोनों इस मक्कारी में सम्मिलित थे। Both husband and wife are involved in the same hypocrisy. हाँ, और मगर पति पत्नी तो किस लिए रखा है प्रभु ने साथ? Why has the Lord kept husband and wife together? क्योंकि दो का चलना बहुत बाइबल में लिखा नीति उसमें सभा उपदेश में, अगर एक गिरे तो दूसरा संभाल लेता है। Because it's written in Ecclesiastes, if one falls, the other will lift him up. अगर पति के मन में ये लालच आया, पत्नी ये कहती कि भाई जी देखो मैं तुम्हारे साथ इस पाप में सम्मिलित नहीं हूँ, तुम करना करो, मैं नहीं। If greed came in the husband's heart and the wife said, look, I'm not with you in this thing. मुझसे कोई पूछेगा, मैं कह दूंगी इतने में बिकी थी, नहीं गलत नहीं। If somebody asked me, I will say openly, it was sold for this much. कई बार हम इतने दबाव में आते हैं कि अपनी पति पत्नी को है उसके पाप के साथ समझौता कर लेते। Many times we come under so much pressure, we compromise the sin of our husband and wife. अपने परिवार के साथ समझौता कर लेते। We make compromises with our family. नहीं, मैं इस गलत में नहीं सम्मिलित हूँ। No, I will not participate in this wrong प्रभु thing. मेरे से सबसे पहले आगे है मेरा। Lord is number one for me. हाँ, देखिए व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में और मंडली में के जीवन में एक अनुशासन होना जरूरी है। There is very important, it is very important to have discipline, personal life, family life, assembly life. हाँ, तीनों में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। In all three. हाँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है। Because our God is a God of discipline. जो जीवन अनुशासित नहीं जीता परमेश्वर के अनुसार, वो बर्बादी में जीता है, चाहे कोई भी। He who doesn't live a disciplined life lives in destruction, whoever he might वो be. ट्रैक से उतर गया, वहां पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। He's gone off the track, the Holy Spirit will not work. हाँ, वो बर्बादी में आकर खड़ा हो गया। He's come to stand in destruction. जिस मंडली में अनुशासन नहीं है, वो मंडली जो है वो बर्बादी में आकर खड़ी हो। In the assembly where there is no discipline, is standing in destruction. बर्बादी का मतलब ये नहीं कि अनंत विनाश में आकर खड़ी हुई, ध्यान रखिए। Ruin doesn't mean eternal destruction. हाँ, देखिए अगर मंडली मुझसे कहती है कि भाई जी ये सेवा है, फिर मेरे सामने दूसरा सवाल नहीं आता।
If the assembly tells me this is your ministry, there is no second question in front of me. अजी मेरी बीवी बीमार है, मेरा वो है, मेरा ये काम है, वो काम है, कोई काम नहीं, मेरे काम से पहले किसका काम है? My wife is sick, or I have this work or that work. What is there before my work? जो प्रभु से पहले रखता है, तो प्रभु एक ने रखा, अपने बाप को रखा, इनको पहले जा बाप को गाड़िया, इनको तुझे कौन कह रहा, तू जा मेरे पीछे One क्यों? man kept his father in front. He said, "Let me go and bury my father." The Lord said, "You go. Who has told you?" हाँ, तू यार, प्रभु ऐसी सेवा नहीं पसंद करता। The Lord doesn't want such ministry. हाँ, प्रभु ने कहा पहले स्वर्ग के राज्य करो। प्रभु यीशु मसीह पहला है, अव्वल है, और उसे वो इस स्थान में रखना जरूरी है। The Lord Jesus Christ is first and number one. It is important to keep him in that place. हाँ, मेरी बच्ची बीमार थी, मुझे प्रभु ने कहा तू जा, मैं जाऊंगा। My daughter was sick. The Lord told me to go for ministry. I have to go. हाँ, मेरी पत्नी बीमार है, मैं जाना, मुझे करना। My wife is sick. I have to go. I have to go. एक बहुत बड़े, अभी 1 महीने 1.5 महीना हुआ है, 1 महीना हुआ होगा, बड़े भाई, बहुत बड़ा भाई है, मैं उसको बड़ा आदर करता हूँ, और उसने मुझसे सेवकाई के लिए बुलाने के लिए। And about a month or 2 back, his very big brother, really honor him. He asked me to come for ministry. हाँ, मैंने कहा भाई मैं भाइयों को बताऊंगा, और भाई लोग प्रोग्राम बनाते हैं उनको। I said, I'll ask the brothers. They make the program, and I'll ask them. हाँ, मुझे मालूम नहीं है, मैं बात करता हूँ। I don't know. I'll talk to them. वो कहने लगे तुम्हारा प्रोग्राम वो भाई बनाता है, वो भाई बनाता है। And he said, "Does that brother make your program?" हाँ, मैंने कहा ये मंडली का अनुशासन है भाई। This is the discipline of the assembly. मेरे सारे काम दूसरे नंबर पे आते हैं, पहला काम प्रभु का है। All my मंडली का, other work are at number 2. The first is the Lord's assembly. अगर मैं प्रभु को पहले रख के प्रचार नहीं करता तो मक्कारी करता हूँ। If I don't keep the Lord as number 1 and preach, then I am hypocrite. मैं सब कुछ सुनाने और दिखाने के लिए प्रचार करता I am only making an outward show. हाँ, जो कह ए भाई मुझे तो फलाना है, मुझे तो ये, तो फिर कर तू। किसने कहा मुझे, मैं फिर टाइम नहीं, मैं आपको बहुत, एक भाई जॉर्डन खान की बात कहता था, वो कह रहा जी वो बीवी को नाराज होना पड़ता, मैं कैसे आ जाऊं। मैंने कहा तो यहाँ बीवी गुलामी जाके कर, यहाँ क्या करना है तू? And I have this problem or I have that problem. I've told you, I should have told you the story of Jordan Khan. One brother told him, and he said, "Go then, go serve your wife." हाँ, अगर प्रभु की सेवा करने की याद क्यों आया फिर? Yeah, you go and serve. जा। Why you come here? Go. हाँ, प्रभु का काम तेरे से ही चलता, प्रभु की आत्मा से चलता है। The Lord's work doesn't run through you, but the Holy Spirit. तो प्रभु का काम प्रभु के पैसे से नहीं चलता, दिखावे से नहीं चलता, किसी आदमी के से नहीं चलता, किसी आदमी के दान से नहीं चलता। प्रभु का काम प्रभु की आत्मा से चलता है। The Lord's work doesn't run by money or any man's influence or power or anything, but only by the Holy Spirit. प्रेरितों का काम 5, 3 और 4 पढ़िएगा फिर। If you read Acts of the Apostles, 5 अध्याय 3 और 4, chapter 5, verse 3 and 4. परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, 6 तक पढ़ देना, 6 तक। हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठाकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। पढ़िए भाई, 6 भी पढ़िए फिर 6 तक। जी भाई। Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received from the land? Didn't it belong to you before it was sold, and after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think doing such a thing? You have not lied just to human being, but to God. When Ananias heard this, he fell down and died. A great fear seized all who heard and what happened. Then some young men came forward, wrapped his body, and carried him out and buried him. 6 भी भाई, भाई 6 भी। जवानों ने उसकी माँ, उसकी पत्नी से पूछा, हो गया? So verse 7.
And now it is about 3 hours later when his wife came in, not knowing what happened, and Peter answered her, "Tell me whether your land, 9 तक सॉरी 9 तक whether you sold the land for so much." She said, "Yes, for so much." Then Peter said to her, "How is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Look, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out." हाँ भाई पढ़िएगा 6 सात से 7 से 9 तक पढ़ दे हिंदी में। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वो भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। अब देखिए एक बात देखिए यहाँ पर। Now see one thing here. ये जानते थे कि हम झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। They know they're lying and deceiving. प्रभु के दासों के सामने, प्रभु की मंडली के सामने हैं, ये जिद से झूठ बोल रहे हैं। They are speaking lies out of stubbornness in front of the assembly and the Lord's people, the servants of God. पवित्र आत्मा ने भाई मारा, मर गया, खत्म। And the Holy Spirit killed him. He died then and there. हाँ, फिर पत्नी आई 3 घंटे बाद। Then the wife came after 3 hours. इतने में उसका बरियल मतलब उसे दफना चुके थे। By the time they'd already buried Ananias. हाँ, उसके पति को। वहां पर ऐसा ना, गर्मी इतनी जबरदस्त है और बर्फ नहीं होती थी कि लाश बर्फ में रख दो, तो फौरन सड़ने लगती। It used to be so hot there, and you can't keep there's no ice to keep the body. The body would start decaying, decomposing immediately. बर्फ तो होती नहीं थी उस समय, because there's no ice there. हाँ, तो इसलिए तिलक उसको पत्नी को मालूम नहीं था। Now the wife didn't know. और वो पूछ रहा है कि तुझे कहते हैं कि वो झूठ बोले जा रही है, जबरदस्ती जिद वो बोल रही है, और उसमें पाप को मानने की हिम्मत नहीं है, पाप को जबरन झूठ बोल रही है। And now she is deliberately lying and deceiving. They do not have the courage to accept the truth. अब सवाल ये उठता है, कह रहा तुझे शैतान ने ये बात फरमा दी थी। And he says, Satan has deceived you. हाँ, कई दफा शैतान, क्या विश्वासी को शैतान भरमा सकता है, उसके मन में डाल सकता है? सवाल ये। Now the question rises: can the devil deceive and deceive a believer, the child of God? मतलब क्या उपयोग कर सकता है उसका शैतान? Can the devil use a believer? हाँ, बिल्कुल पतरस का इस्तेमाल किया। प्रभु ने कहा शैतान मेरे पास से दूर हट। Yes, because the Lord told Peter, "Get behind me, Satan." हाँ, विश्वासी का शैतान उपयोग कर सकता है। A believer can be used by the devil. हाँ, जो प्रभु के लिए सही उपयोग नहीं करते, शैतान उनका उपयोग करता था। They who are not being really used by the Lord are used by the devil. हाँ, पहला इतिहास 21 और 1 में कहता है शैतान ने दाऊद को उस्काया और इस्तेमाल कर दिया। First Chronicles 21:1 says, Satan tempted David. Satan actually compelled David. वहां पर लिखा है साफ इतिहास में, पहला इतिहास 21 और 1 में, शैतान ने दाऊद को उस्काया। It is written in the right word in English is Satan stood up and moved David. हाँ, उसका उपयोग किया। He used David. हाँ, योआब ने उसे मना किया। Joab had told him, "Don't do this." सच्चाई बताई गई उसे कि गलत है परमेश्वर The का। truth was told him, "You shouldn't do that." मगर वो शैतान के इतने क्लचेस में था, इतने उसके पंजे में था कि वो ही कर गया। But David came so much in the clutches of Satan that he did it. हाँ, प्रियो, हननिया और सफीरा ने लालच के आगे घुटने टेक दी। Ananias and Sapphira bowed their knees before greed. प्रियो, प्रभु के काम को प्रभु की इच्छा में करना और जीना सीखना चाहिए। We ought to learn how to do the work of God in the will of God. अगर प्रभु की शरीर में कहीं कैंसर है तो प्रभु उसे काट देगा, निकाल देगा। If there is any cancer in the body of Christ, the Lord will remove it. हाँ, वो पूरी देह को नहीं सड़ने देगा। He will not allow the entire body to या die out. या तो पास बुला लेगा या हटा लेगा उसे। Either he will bring the person back or remove him. हाँ, वो मंडली से हट जाएंगे, काट दी जाएंगे। They will be cut off. कितने थे मंडली में, अब नहीं है, क्यों नहीं है? And many are cut off. They're not here today. Why not? यूहन्ना 6:64 और 65 में लिखा है।
John 6:64-65 is written कि अगर हम प्रभु के साथ जुड़े हैं तो ये एक वरदान है हमें, ये एक गिफ्ट है हमें। that if we are joined with the Lord, this is a gift of God. ये प्रभु की दया से पढ़ लीजिएगा आप उसे, You can read it. क्योंकि मेरे पास कोई नहीं आ सकता, जब वरदान है, ये वरदान ना दिया। John chapter 6:64-65. No man can come to me except the Father draw him. पढ़िए भाई हिंदी में। जॉन 64-65। परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु तो पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए तब तक वो मेरे पास। जब तक रुको भाई रुको, जब तक पिता की ओर से ये वरदान ना मिले तब तक हम मंडली में टिके नहीं रह सकते। No one can come to the assembly or to Christ unless it has been granted to him by the Father. हाँ, कुछ लोग अनुग्रह के समय में चल रहे हैं, वहाँ दया के Some समय। people are living in the time of grace. हाँ, देखिए कितने मंडली में थे, अब नहीं है। Many were in the assembly, they're not there anymore. क्यों नहीं है? Why not? क्योंकि वो आत्मा के चलाए नहीं चलते थे, Because they were not walking in the leading of the Holy Spirit. तो वो वरदान हटा लिया प्रभु। That gift was taken away. हम जो है मंडली में भीड़ देखकर बड़े खुश होते हैं। We भाई get हमारे very- क्लब में, हमारे संगति के घर के क्लब में बड़ी भीड़ है, बड़ी। We are very happy to see a large number of people in the club of the assembly, हाँ, संगति के घर में, in the house of fellowship. अरे हम बड़े प्रभावशाली लगते हैं यार, क्या काम We करते हैं। seem very influential, very powerful. हाँ, हम थोड़े लोगों को काम नहीं करना चाहते। We don't want to work in a few people. हाँ, प्रभु ने गिदोन से कहा, ये ज्यादा, इन्हें कम कर। The Lord told Gideon, these are too many, reduce them. हाँ प्रियो, प्रभु हम संख्या को देखकर बड़े खुश होते हैं। प्रभु हमारा वास्तविक जीवन देखकर, ईमानदारी का जीवन देखकर, वचन के जीवन को देखकर खुश होता है। हम भीड़ को देखकर खुश होते हैं। We get very pleased to see a multitude. The Lord is pleased to see your and mine honest and sincere life. हाँ, हम भीड़ से सोचते हैं प्रभावशाली हो गए। We feel that we become very effective by seeing the crowd. हमें भीड़ बड़े प्रभावित करती है। The crowd really impresses us. हाँ, प्रभु को हमारा जीवन प्रभावित, But the Lord is impressed by our life. हाँ, देखिए ये मंडली के साथ जुड़े हैं, आप यहाँ पर आ रहे हैं, ये परमेश्वरीय वरदान है। आप अपनी शक्ति से नहीं आ सकते। मेरे पास कोई कभी नहीं आ सकता। That you are joined to the assembly and you're coming to the fellowship, it is only the grace of God. No man can come to me. इसलिए अभी आपके पास अनुग्रह उठानी है। And that is because grace has not been taken away from you. प्रभु जानता है मंडली में कौन कौन बीमार है, आत्मिक रूप से कौन कौन कमजोर है, कौन कौन। The Lord knows all those who are. पहला कुरिन्थियों 11:30। Read 1 Corinthians 11:30. 1 Corinthians 11:30. The Lord knows those who are sickly and weak in the assembly. इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। वो कह रहा है बहुत सारे निर्बल हैं, बहुत सारे बीमार हैं, बहुत सारे सो भी गए। So he says there are many weak and sick among you and many sleep. हाँ है, There are. होंगे नहीं, Not that they will be. जो कमजोर है वो मंडली को कमजोर करते हैं। They who are weak, they weaken the assembly. वो मंडली को कमजोर करने में लगे हैं। They are there to weaken the assembly. वो अब तक एक आदमी को, आत्मा को नहीं लाए। They have not brought one soul to Christ. हाँ, न उन्हें बोझ है इस बात के लिए। Neither do they have the burden वो for this. मंडली को कमजोर करते हैं। They are there to weaken the assembly. हाँ, जो बीमार है, बुराई करने की आदत है, लालच करने की आदत है, वो ये बीमारी हर एक में फैलाते फिरेंगे वहीं से। They are sick with greed and with speaking evil, and they continue to spread the sickness. मंडली ने ये किया, वो दिया, ये दिया, वो दिया, इस पर वो तुमने क्या किया नहीं, बस वो हमेशा ये बीमारी फैलाते हैं। Assembly had given me this, assembly has done that, but what have you done for the assembly? They keep on spreading the sickness. अभी प्रभु का अनुग्रह है, नहीं तो प्रभु हटा लेगा इसको, It is God's grace still, otherwise the Lord will take it away या उठा लेगा। or will take you away. हाँ, मगर एक चांस रखा उनके लिए 31 पद में, पहला कुरिन्थियों 11 थे। But यदि वो, अगर वो जांच कर
उसको ठीक कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो सजा हटा ली जाती है। 1 Corinthians 11:31. If they were to examine themselves and set those things right, then the grace will be restored back. हाँ, पढ़ दीजिए भाई, 11 Read verse 31. यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड ना पाते। If we would judge ourselves, we would not be judged. हाँ, देखिए प्रभु यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है, प्रभु यीशु के लहू में सिद्धता है, प्रभु लहू में शक्ति है, और वो शाप से निकालकर प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें आशीष में खड़ा कर सकता है, अगर हम जांच कर जान ले और मान ले। The blood of the Lord Jesus is powerful. It has power to cleanse. If we examine ourselves and set things right, He has the power to cleanse completely. हाँ, अगर बिना जांचे सम्मिलित होते हैं तो चाहे आप कितनी आशीषित क्यों ना हो, वो लहू आपको फिर से शाप में आकर खड़ा कर दे। If we do not take part in the Lord's table with examination, then however much we will once again be standing in a curse. तो लहू में शाप से आशीष में लाने की शक्ति है, तो दूसरी बात उसमें आशीष से शाप में भी लाने की शक्ति। The same blood that can bring you out of a curse into a blessing has a power to turn your blessing into a curse. ध्यान से पढ़िए, Read carefully. मत्ती 27:25 पढ़िए। Matthew 27:25. Matthew 27:25. सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। And all the people answered and said, His blood be on us and on our children. हम भी प्रभु यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर लेकर आते हैं, और इन फरीसियों ने बिना जांचे, बिना अपराध माने यीशु का लहू हम पर और हमारे परिवार पर है। We also take the blood of the Lord Jesus upon ourselves. These Pharisees took that blood upon themselves without examination. प्रियो, ये इस्राएल आशीषित कौम उसी 2000 साल से शाप में जी रही है। This blessed generation, Israel, is living 2000 years under a curse. हाँ, इससे भयानक ताड़ना कभी नहीं हुई कभी। No greater chastening than this. इन्होंने प्रभु यीशु मसीह का लहू अपने पर, अपने परिवार पर लिया, और ये शाप में चले गए। They took the blood of the Lord Jesus on themselves, on their families, and they went into a curse. हम शापित लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर लिया, हम शाप से आशीष में चले गए। We cursed people took the blood of Jesus on ourselves. We went from curse और into a blessing. अभी तो ये ऐसी शाप में जाने वाले हैं जो सृष्टि में कभी हुआ नहीं और उसके बाद नहीं होगा। And वो now शाप they- इनके लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि इन्होंने उस लहू का, उस अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, उस लहू को now लिया they are going बिना to जांचे। go. Now they're going to go into a curse that has never happened on earth before or will happen again, because they took that blood on themselves without examination. मत्ती 24:21 पढ़िए। Matthew 24:21. Matthew 24:21. क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। हाँ, मगर इस समय हम उठा लिए जाएंगे, ये सिर्फ इस्राएल पर होगा, क्योंकि उसने कहा था इसका लहू मुझ पर और मेरे परिवार पर है। And then there will be Which- great tribulation, which has not been since the beginning of the world until this time, and we will already have been raptured. This will हमें happen to Israel. हर बार अपने आप को जांचते हैं, प्रभु हमें इस मेज के सामने और उसका हम लहू लेते हैं। हम कहीं भी शाप में होते हैं, ये लहू हमें शाप से निकालकर फिर आशीष में खड़ा कर देता है। Because we always take part in the Lord's table with examination. If there is anything that is wrong, condemnable in our lives, it brings us out of condemnation into blessing. इब्रानियों 10:29 पढ़ता है, जरा ध्यान से पढ़िए, बड़े दहशत के साथ पढ़िए, डर के साथ, आदर के साथ। Hebrews 10:29, read it with fear and honor. Hebrews 10:29. तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। हाँ प्रियो, बहुत लोग परमेश्वर के अनुग्रह की आत्मा का अपमान करते हैं, उसके Many people बिना insult, जांचे और प्रभु की मेज में सम्मिलित होते हैं। many people सोच लो, बाइबल ये वचन हमें दिखा के कहती है, फिर सोच लो, फिर तुम सोच लो अपने बारे में। Many people insult the spirit of grace, and so the Bible tells us, therefore let a man know this. मगर फिर भी प्रभु का अनुग्रह एक बार कहता है, यदि हम अपने आप को जांच लें। Still the grace of God says, if we examine ourselves.
हाँ, भले ही हम श्राप में क्यों ना, अगर अपने पाप को मान लें, तो ये लहू हमें श्राप से फिर आशीष में लाकर खड़ा करे। Even if we are in a curse, if we examine ourselves, His blood will bring it from curse into blessing. आप कितने और कितनी बार आप पाप में गिरे हो, However यीशु many मसीह- times you may have been fallen in sin, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको आशीष में लाकर खड़ा ही नहीं करता, बल्कि आशीषें बरसाने लगता है। the blood of the Lord Jesus not only makes you stand in blessing, but starts pouring out blessing on you. हाँ प्रियो, हननिया और सफीरा झूठ पर झूठ बोलते रहे हैं। Ananias and Sapphira kept on speaking lie after lie. हाँ प्रियो, अब ये झूठ बोलने पे सजा नहीं थी। This punishment did not come because of the lies. हाँ, ये प्रभु की देह, प्रभु की मंडली, प्रभु के दासों, उनसे झूठ बोला। वैसे तो सारी दुनिया झूठ बोलती है, अगर इस तरह सजा देने लगे तो दुनिया में एक भी आदमी नहीं मिलता बचता। Because they spoke lies to the assembly of Christ and to the men of God. Otherwise, if that would be the case, no one would remain alive. Everybody lies once in a, everybody lies. हाँ, क्योंकि दुनिया में सबने झूठ बोला, सब मार दिए जाते। For all have lied, everybody should have been killed. ये परमेश्वर की देह के विरुद्ध बोलते हैं। But they speak lies to the church of, to the body of Christ. सोच लो तुम किस अनुग्रह की आत्मा का अपमान। Just imagine what a spirit of grace you are insulting. हाँ, परमेश्वर की मेज के सामने Before the Lord's table. प्रियो, झूठ और मक्कारी और विरोध के साथ आना कितनी भयानक। Lies, hypocrisy, and coming with such an attitude, how terrible it is. आप जैसे भी हो, जैसे वैसे अगर प्रभु के सामने आओगे, If you come मैं to the मक्कार हूँ Lord, प्रभु, मैंने तुझे धोखा दिया, just as I am, जैसा मैं हूँ वैसे ही आ जा। if you come to the Lord just as you are, just as I am, I've come to you. परमेश्वर ताड़ना करके हमें अनुशासित करता है। The Lord chastens us and sets our life right. हाँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है। Because our God is a God of discipline. हाँ, हमारे ऊपर परमेश्वर प्रभुता करता है। Our Lord rules our life. संसार और पैसा दुख नहीं करता। Not the world of money. जहाँ पैसा देखा, जहाँ बड़ापन देखा, वहां पर लालच में आए, घमंड में आ गए, विरोध में आ गए। Where we saw name and fame become in opposition and bitterness and greed. देमासस एल्डर था, प्रभु ने उठा के निकाल दिया एकदम। Demas was an elder. The Lord cast him out. गेहजी एलिया के साथ बिल्कुल दास था, हटा दिया प्रभु। Gehazi was Elijah's servant, but the Lord, Elisha's servant, the Lord cast him यूहन्ना out. 3:8 में कहता, अगर मैं तुझे ना धोऊं, John 13:8, the Lord says, if I do not wash you, पतरस आप पीछे हटा रहा था, नहीं प्रभु मुझे नहीं धोना। Peter said, Lord, not me. तो प्रभु कह रहा, तेरी मेरी संगति कट जाएगी। The Lord said, if I don't wash you, then I have no fellowship with you. हाँ प्रभु, जब प्रभु क्षमा का लाता है, दया के बात लाता है, तो उसके लहू को, अनुग्रह को अपमानित करना ऐसी भयानक बात है। When the Lord brings His grace, then to dishonor the blood of Christ is a terrible thing. हाँ, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। So let a man examine himself. आप पर क्या प्रभुता करता है? What lordship does he have on you? आप पब्लिकली और प्राइवेटली कैसे जीते हैं? How do you live for the Lord publicly and privately? प्रभु के समय को किस तरह उपयोग करते हैं? How do you use the Lord's time? हाँ, आपके घर के वातावरण, जीवन का क्या हाल है? What is the atmosphere at home? प्रियो, आप प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। You cannot deceive the Lord. आप प्रभु के लहू को, उसके अनुग्रह को अपमानित करते हैं। You dishonor the blood of God and the grace of God. मगर पवित्र आत्मा फिर दया दिखाने के लिए आपके पास अपने वचन को लाई। But the Lord has once again, the Holy Spirit once again come to show you His grace. या आपका विवेक सुन हो गया, वो आपके मन विवेक की भी नहीं सुनता आप। Or your conscience has become dull of hearing, doesn't listen to your voice. प्रियो, आज भी वही लहू है जो आपको श्राप से आशीष में ला खड़ा। Again, it is the same blood that can bring you out from curse into a जो blessing. प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपमान करते हैं और वैसे ही ले लेते हैं, वो कितने आशीष दिखते हो, वो फिर जाकर श्राप में खड़े। They who insult the blood of Christ and take part in the table without examining themselves, they once again stand in a terrible situation. इस गीत की ये बात अच्छी लगती है,
तो मैं जैसा भी हूँ आ गया तेरे सामने। Therefore, very beautiful song. It says, "Just as I am, हे प्रभु मुझ पर दया कर। Lord, have mercy on me. प्रभु मैं सचमुच में अपने आप से बहुत परेशान हूँ। Lord, I am really discouraged with myself. प्रभु मैं दिखाने और देखने के लिए बहुत अच्छा दिखता हूँ, मगर कहीं मेरे अंदर छुपा हुआ जीवन दूसरा जीता। Lord, I seem to be very good on the outside. There is a very hidden life within me. इसमें दो जन, एक शरीर में दो जन जीते हैं। So, two different people living in one body. एक दिखाने के लिए, अकेले जीने के लिए। One is to show, one is when I'm alone. तो मैं जैसा हूँ वैसा आ गया हूँ। Lord, I've come to you just as I am. प्रभु का अनुग्रह आया है, आप या उसे अपमानित कर सकते हो या आदर दे सकते The हो। Lord's grace has come. You may either honor it or dishonor it. प्रियो तो सोच लो फिर। See, then think. बस एक बात कह रही है, जस्ट एज आई एम, जैसा मैं हूँ प्रभु आ गया। Only one thing, just as I am. आपने क्या कुछ नहीं किया, कितना कुछ नहीं किया, तो लहू फिर से आपको श्राप से आशीष में लाकर। Whatever you might have done, the blood will bring you out from curse into a blessing. बस जैसा हूँ वैसे प्रभु। Just come as you are. आइए प्रार्थना। Come, let us pray.